And or a question देखो, just see another example of similar type, right? In n rows containing m cells, in n rows, in n rows, each containing m cells, each containing, each containing m cells in series are joined in parallel, are joined in parallel. Maximum current, right? Maximum current taken from this combination, maximum current taken from this combination, maximum current taken from this combination in a 3 ohm resistance, in a 3 ohm resistance, maximum current is taken from this combination in a 3 ohm resistance. Like lagaya external pe. If the total number of cells used is 24, right? The total number of cells used, the total number of cells used is 24, total number of cells used is 24, and internal resistance of each cell is 0.5, and internal resistance of each cell, and internal resistance of each cell is 0.5 ohm. Find the value of m and n. Find the value of m and n. स्टूडेंट्स मैंने कुछ एक पर्टिकुलर कनेक्शन किया, मुझे नहीं पता कि कितना है. अगर स्टूडेंट्स मेरे पास n रोज है, इस तरह मेरे पास n रोज है जिसपे मैंने m सेल्स लगाया है इन सीरीज, मतलब एक सेल लगवाया, एक सेल लगवाया, एक सेल लगवाया, इस तरह कितना सेल्स लगवाया मैंने, m सेल्स लगवाया. मानो कि मुझे मैंने मानो कि n m सेल्स लगवाया. एंड स्टूडेंट्स सीरीज पे इस इन सीरीज जॉइंड इन पैरेलल n रोज, मतलब इस तरह कितने रोज है, लाइक दैट देयर आर n रोज. इस तरह m सेल्स मैंने लगवाया इन सीरीज पे और इस तरह मैंने n रोज पे कनेक्ट किया. maximum current taken from the combination is a maximum current is taken from this combination in a 3 ohm resistance, मतलब एक्सटर्नली मैंने एक 3 ohm resistance लगवाया. the total number of cells is 24. फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ सेल्स में था, इस पे m नंबर ऑफ, इसमें n, m, इस पे n नंबर ऑफ, तो टोटल कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा स्टूडेंट्स. यस सर नो? फ्रेंड्स इस पे सीरीज पे मैंने लगाया m सेल्स, पैरेलल पे लगाया n रोज मैंने किया, तो हर एक में m n रोज हुआ, तो कितना नंबर ऑफ सेल्स टोटल हो गया, m into n ना स्टूडेंट्स. यस सर नो? राइट. total number of cells, total number of cells is equal to mn, and that mn is equal to how much students, 24 in the question given. And students for maximum current, देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टूडेंट्स, अगर हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू r होता है स्टूडेंट्स, तो अगर टोटल रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो इस सीरीज पे कितना रेजिस्टेंस लग जाएगा, mr. यहाँ पर mr, इस तरह कितना लग जाएगा, n नंबर ऑफ, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, सीरीज पे लगा mr, n रोज है तो mr by n हो जाएगा, और mr by n शुड बी इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम निकाले अभी थोड़ी देर पे देखेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या लिए. maximum power transfer theorem देखे थे, the total resistance should be equal to the external resistance, rx is equal to rl for maximum power transfer theorem. Maximum power transfer theorem, maximum, right, maximum power transfer, maximum power transfer theorem. okay. स्टूडेंट अगर मैं इसको rx is equal to rl, मतलब अगर मैं ले लूं फॉर मैक्सिमम करंट स्टूडेंट, राइट, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, when total resistance, that is m into r in series by n number of rows, is equal to the external resistance r. Yes or no?
स्टूडेंट यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है सेल्स का? 0.5 दिया गया है ना, ये सुन लो। सो 0.5 स्टूडेंट, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? इज 3 ओम दिया हुआ है ना क्वेश्चन पे। दैट मींस दिस इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर दूं, m इंटू हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5। m इंटू 0.5 divided by n is equal to 3. That means m into 0.5 is equal to 3n. Correct? That means अगर m की बात करूं मैं, अगर सिर्फ m की बात करूं, how many in series? So that is 3n by 0.5. 3n by 0.5, that is 1. तो m is equal to 6n. ये मुझे एक डाटा मिल गया, m is equal to 6n, वही रिलेशन है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर 6n, m into n is equal to 24। m की जगह पे मैंने डाल दिया कितना? 6n। तो 6n into n is equal to 24। So that is 6n square is equal to 24। तो स्टूडेंट n square कितना हो गया? n is equal to how much? 2। yes or no? समझ पाए स्टूडेंट? that means यहाँ पर जो मैं लगाया, मैं दो, मेरे पास रोज दो है। आई एम हैविंग n रोज and I'm having how many series connected? m is equal to how much students? m is equal to 12। if n is equal to 2, then m is equal to 12। so I am having 2 rows is containing 12 सेल। समझ पे आ गया? तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। आई थिंक यू गॉट द क्वेश्चन। the question, a fuse wire with a current with a circular cross section radius of 0.15 mm blows at 15 ampere. What the radius is the radius of a fuse is the radius of a fuse made of same material made of same material which will blow at 120, which will blow at 120 ampere। That means students, you know, अगर हम स्टूडेंट फॉर ए फ्यूज वायर, यू नो, फ्यूज वायर करंट जो है ना, E is equal to I square R हम ले लेंगे, ठीक है। एंड वॉल्यूम की बात अगर देखेंगे तो 4/3 IRQ, I square प्रोपोर्शनल टू RQ, ठीक है। वॉल्यूम के साथ अगर देखेंगे तो I square प्रोपोर्शनल टू RQ अगर करेंगे, I square प्रोपोर्शनल टू RQ, so I is equal to स्टूडेंट प्रोपोर्शनल टू R to the power 3/2 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। सो दैट मींस यहाँ पर अगर हम रेडियस की बात करें, R2/R1 is equal to how much स्टूडेंट्स? I2/I1 टू दी पावर, ये 3/2 था, उस तरफ चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। दैट मींस 120/15 सिंपली आपको लेना है, दैट इज टू दी पावर 2/3। सो दैट इज 8 टू दी पावर 2/3। पता है ऐसा क्या है जो कि मतलब 8 टू दी पावर 2/3 मतलब R2 और R1 पे क्या रिलेशन हो जाएगा? किसका है? इसको मैं स्क्वायर करूं, फिर इसका रूट क्यू निकालूं, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट? 8 का रूट क्यू कितना है स्टूडेंट्स? 2 का स्क्वायर कितना है? 4। so that is the this is equal to 4। that means R2 is equal to how much? R1, ठीक है। that means R1 जो था वो कितना था? 0.15 mm था। अभी जो वायर लेना होगा मुझे, थोड़ा मोटा लेना होगा, that is 0.6 mm। that is the thing you have to consider in such type of cases। और स्टूडेंट्स अगर क्यूब की बात करें तो याद रख सकते हो इसको, there is no, वीडियो पे मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा, ठीक है। जस्ट अगर एक क्यूब है, अगर एक क्यूब है तो क्यूब का रेजिस्टेंस कितना है, अक्रॉस द डायगोनल, अपोजिट द डायगोनल, ये दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर देंगे, ठीक है। लेट मी टू गिव असाइनमेंट्स, ठीक है, देन हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दिस वाज फॉर टुडे स्टूडेंट्स, मैं नोट्स और वीडियो शेयर कर रहा हूँ।